Hello dear friends, welcome to a new lecture of chemical kinetics. In this particular lecture, first of all we are going to revise rate constant K and the units of the rate constant. ऐसे तो दोस्तों जूम लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़े उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले रिवाइज हो गए, देन आगे बढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेट कांस्टेंट के एंड व्हाट आर द यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट. दोस्तों जैसे हमने लिखा था, अगर हम किसी भी रेट को रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देन वी कैन राइट रेट ऑफ द रिएक्शन, आई मीन टू से instant rate of the reaction is equal to minus dr upon dt is equal to k into a raised to x, or we can say a raised to n. Here x or n is nothing but the concentration power. The sum of the concentration power is known as a reaction order, or we can say order of the reaction, which we have already learned in जूम लेक्चर में दोस्तों हमने पढ़ा था. ठीक है, यहाँ पे में भी पॉसिबल है ओनली वन रिएक्टेंट ए या मोर देन वन रिएक्टेंट ए बी सी डी एक्सेट्रा, सभी चीज पॉसिबल है. यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया, इन दैट पर्टिकुलर एग्जांपल ओनली ए इज देयर एंड एक्स इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन पावर ऑफ द रिएक्टेंट ए, विच इज नथिंग बट द रिएक्शन ऑर्डर. क्योंकि यही तो दोस्तों फिनोमिना था, द सम ऑफ द concentration power is known as a reaction order. So here x is equal to n is reaction order. अभी दोस्तों यहाँ पे अगर हम k को फाइंड आउट करना चाहें, देन वी कैन राइट k इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई ए रेस टू एक्स और ए रेस टू एन. अगर k को फाइंड आउट करना चाहे, देन वी कैन राइट k is equal to minus dr upon dt into a raised to n, in which dr is nothing but the concentration. Which types of concentration? Molar concentration is there. So dr is equal to molar concentration, mole per liter inverse, divided by d into t. T is time, so I can write time over here, possible in second, possible in minute, possible in hour, day, year, etc. into a raised to n. Again, a is nothing but the concentration, that is mole per liter, and n is nothing but the sum of the concentration power. Okay, अगर दोस्तों इसको आगे और सॉल्व करें, देन वी कैन राइट k इज इक्वल टू मोल इंटू लीटर इनवर्स रेस्ट टू 1 माइनस एन. क्यों 1 माइनस एन लिखा दोस्तों? बिकॉज मोल इंटू लीटर इनवर्स रेस्ट टू एन, नीचे उसको ऊपर लेके जाने के साथ क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एन लिख सकते हैं. ऑलरेडी 1 पावर इज देयर. Here time is possible in second, minute, hour, etc. as we discuss. Suppose if we are going to find out the unit for the zero order reaction. For the zero order reaction, what should we write? K is equal to mole into liter inverse into 1 minus n, where n is equal to 0. So 1 minus 0 is equal to 1. 1 अगर किसी का भी 1 पावर वही अमाउंट आएगा. So mole into liter inverse raised to 1 minus 0, because zero order reaction n is equal to 0 into time inverse. यहाँ पे दोस्तों क्लियरली हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट फॉर द के इज मोल इनटू लिटर इनवर्स इनटू टाइम इनवर्स. दोस्तों कई बार एमसीक्यू में, कई बार राइटिंग क्वेश्चन में ये होगा, आपको रेट कांस्टेंट के यूनिट आपको वहां पे दिए गए होंगे. फ्रॉम द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट यू हैव टू आइडेंटिफाई द रेट ऑफ द रिएक्शन, और वी कैन से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सॉरी, देन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ first reaction is there, then what can we write? Here n is equal to 1, 1 minus 1 is equal to 0. किसी का भी 0 पावर आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन इज मोल इनटू लीटर इनवर्स रेस्ट टू 1 माइनस n. n is equal to again 1, so I can write 1 minus 1 is equal to 0 into time inverse. सो यहाँ पे 0 किसी का भी पावर आंसर आएगा 1. 1 इंटू टाइम इनवर्स इज इक्वल टू टाइम इनवर्स. सो वी कैन राइट second inverse or minute inverse or hour inverse is the unit for the first order reaction. Now what about fourth order reaction? Let's see about the fourth order reaction. fourth order reaction के लिए दोस्तों और कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है? concentration mole into liter inverse raised to 1 minus n. 1 minus n, 1 minus n is equal to 4 into time inverse.
into time inverse. 1 minus 4 is equal to minus 3. So I can write mole raised to minus 3. Later minus 1 raised to minus 3 minus minus plus later q into time inverse. That is the unit for the fourth order reaction. Okay, from the basis of this formula you can find out the unit for any order reaction, or we can say from the unit of the any order reaction for the rate constant k we can identify order of the reaction also. Okay, ये टॉपिक दोस्तों रिवीजन के लिए था, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था, बट फिर भी इम्पोर्टेंट था, सो एक बार देख लिया है. नाउ one more, or we can say new concept, that is molecularity, similar to reaction order. रिएक्शन ऑर्डर दोस्तों हमने आगे पढ़ा था. व्हाट वाज रिएक्शन ऑर्डर, जल्दी से याद करते हैं. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑर्डर. रिएक्शन ऑर्डर इज नथिंग बट द sum of the concentration power of the reactant, that is reaction order. Reaction order is a practical value, practical phenomena. Reaction order may be 0, maybe 1, maybe 2, maybe 3, or we can say fraction of the positive unit. But if we talking about molecularity, the main difference between molecularity and reaction order is molecularity is a theoretical concept. ये theoretical है, as well as जो हमारा reaction order था वो practical concept था. ठीक है, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों इक्वल नहीं भी हो सकते हैं. कौन सी कंडीशन में इक्वेशन इक्वल हो गए, कौन सी कंडीशन में इक्वल नहीं हो गए, वो बाद में देखेंगे. फर्स्ट, व्हाट इज मोलेक्युलरिटी इन एनी रिएक्शन. आई रिपीट, इन एनी रिएक्शन. स्टार्टिंग मटेरियल में दोस्तों नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं, स्टार्टिंग मटेरियल में नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, मोलेक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, आई रिपीट, the number of reacting species may be atom, may be ion, may be molecule taking part in elementary reaction, or we can say primary reaction, which must collide. जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, collide होते हैं simultaneously in order to bring about chemical reaction is called molecularity of the reaction. This is terminology of the NCERT टेक्स्ट बुक. ये NCERT टेक्स्ट बुक हुई. अभी इसको एकदम सिंप्लीफाइड करना है. ये वर्डिंग्स आपको चाहिए फॉर द बोर्ड एग्जाम. इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई द टॉपिक, व्हाट यू शुड डू दोस्तों, इतना याद रखना है, किसी भी रिएक्शन में, और वी कैन से किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, जो स्टार्टिंग रिएक्टिंग स्पीसीज है उसके जो टोटल नंबर हो गया, नंबर ऑफ स्टार्टिंग रिएक्टिंग स्पीसीज, that number is nothing but the molecularity. For example, here you can see one example, NH4NO2, ammonium nitride gives nitrogen gas plus H2O. In this particular reaction, starting material or can start number of starting species is 1. So this reaction is unimolar reaction. This reaction is known as a unimolar reaction. if यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ रिएक्टेंट या फिर नंबर ऑफ स्पीसीज 2 होती तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाइमोलर रिएक्शन. यू कैन सी, इफ वन रिएक्टिंग स्पीसीज इज देयर then reaction is known as a unimolar reaction. Molecularity of the reaction is 1. But if there are 2 reacting species present in the elementary reaction in starting, then that reaction is known as a bimolecular reaction, and the molecularity of the reaction is 2. So you can see here HI, number of HI कितने दोस्तों, 2. 2 HI will gives H2 gas plus I2 gas. In this reaction, 2 reactive species collide with each other. That's why this reaction is bimolecular, or we can say molecularity of this reaction is 2. Now what about trimolecular? Yes, 3 reacting species are there. If 3 reactive species in the elementary reaction and startings are there, then that reaction is known as a trimolecular reaction. I repeat, that reaction is known as a trimolecular reaction, and molecularity of this reaction is 3. You can see twice of NO plus O2. Total number आप count करोगे 2 plus 1. Twice NO plus 1 O2. 2 plus 1 is equal to 3. So this reaction is trimolecular reaction,
or we can say molecularity of the reaction is 3. So again I repeat in a simple language, what is molecularity of the reaction? Molecularity of the reaction is nothing but the number of reacting species, which may be atoms, may be ions, may be molecule, taking part in the elementary reaction, which must be collide simultaneously in order to bring about the chemical reaction. That number of reacting species are known as a molecularity. इसको हम आगे क्लासिफाइड कर सकते हैं यूनिमोलेक्यूलर, दिस इज यूनिमोलर, यहाँ पे यूनिमोलर दिख रहा है एक्चुअली, यूनिमोलेक्यूलर, बायोमोलेक्यूलर, ट्राइमोलेक्यूलर एंड लास्ट पॉलीमोलेक्यूलर. नाउ व्हाट इज पॉलीमोलेक्यूलर रिएक्शन? In particular polymolecular reaction, I repeat, the probability that more than 3 molecules, or we can say more than 3 reacting species can collide and react simultaneously is a very small scale reaction, hence these are very rare and slow process. सर ये आप तो गलत बता रहे हो, कई सारी रिएक्शन हमने पढ़ी है, वहां पे स्टार्टिंग मटेरियल, नंबर ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल्स आर मोर देन 3, 3 से ज्यादा होते हैं. इफ दे आर मोर देन 3 देन द मोलेक्युलरिटी इज मोर देन 3, आई मीन टू से पॉलीमोलेक्युलर रिएक्शन. बट एक्चुअली दोस्तों जहां पे आपको मोलेक्युलरिटी 3 से ज्यादा दिखती है, मेनली वो रिएक्शन सेकेंडरी रिएक्शन होती है, और वी कैन से वो रिएक्शन सिंपल रिएक्शन नहीं होती, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है. और इन दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोस्तों एक से ज्यादा स्टेप होगी, और एक से ज्यादा स्टेप में से कोई एक स्टेप होगा जो स्लो होगा, उसके अकॉर्डिंग बात हो सकती है. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. बट बिफोर दैट फिर से हमको अगर पॉलीमोलेक्युलर रिएक्शन को डिस्क्राइब करना है, देन वी कैन डिस्क्राइब इट लाइक दिस. द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मोलेक्यूल्स कैन कोलाइड, that reaction is known as a polymolecular reaction. बट प्रैक्टिकली इस तरह की रिएक्शन बहुत रेयर होती है, और जितनी पॉसिबल है पूरी पॉसिबल पॉलीमोलेक्युलर रिएक्शन हमेशा स्लो होती है. दैट वी हैव टू रिमेम्बर, हमको दोस्तों याद रखना पड़ेगा. सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग द मोलेक्युलरिटी. सो मोलेक्युलरिटी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्सप्लेन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. बट किस तरह की रिएक्शन का ऑर्डर? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का. ये क्वेश्चन में दोस्तों मैं थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ. एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड द मोलेक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन. ऑर्डर एंड द मोलेक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन. बट विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलेक्युलरिटी एंड द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो सकता है? फर्स्ट आपको सिंपली एक एग्जांपल दिख रहा है, इन विच देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्टिंग starting reactive species are there. First is KClO3 potassium chloride, then FeSO4 ferrous sulfate, then sulfuric acid. If we are trying to calculate the molecularity, then number of KCl is 1, FeSO4 is 6, H2SO4 is 3. 1 plus 6 plus 3 is equal to 10. Actually this is polymolecular reaction, जिसके बारे में दोस्तों ऑलरेडी हमने बात की थी. पॉलीमोलेक्युलर रिएक्शन ज्यादातर केस में कैसी होगी? स्लो होगी, या फिर वो सही में बोले तो एग्री नहीं करती, रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है. बट फिर भी यहाँ पे दोस्तों अगर मोलेक्युलरिटी की बात करें वो 10 है, दैट इज थियोरिकल. अभी रिलेशन की बात करें, मोलेक्युलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. मोलेक्युलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दोस्तों कई बार ऐसा होगा, अगर मोलेक्युलरिटी 1 है, if unimolecular reaction is there, then possibility that order of the reaction is also 1. If molecularity is 2, bimolecular reaction, then order of the reaction is also 2 possible है. ये ज्यादातर केस में पॉसिबल होगा. बट अगर दोस्तों मोलेक्युलरिटी ज्यादा है तो फिर उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड द मोलेक्युलरिटी आर डिफर. यहाँ पे हमको मोलेक्युलरिटी 10 दिख रही है, 10 दिख रही है, डजंट मीन इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी 10 होगा. प्रैक्टिकली इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो मिलने वाला है दैट इज सेकंड. ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. सर ये किस तरह से पता चला? दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन.
जरा सिंपली दोस्तों एक बात दिमाग में बिठानी है, इतनी ज्यादा मोलिकुलरिटी पॉसिबल नहीं है। अगर इतनी ज्यादा मोलिकुलरिटी, इट मींस दिस रिएक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपली दोस्तों दिमाग में बिठाना है, दिस रिएक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। व्हाट डिड मीन बाय कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या है? रिएक्शन इन विच मोर देन वन स्टेप्स आर पॉसिबल, एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन पॉसिबल होगी। सो दोस्तों ये रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप है, और एक से ज्यादा स्टेप में से कोई ऐसा स्टेप है जो स्लो है। फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो स्टेप स्लो है, दैट स्लो स्टेप इज नोन एज अ रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप इज नोन एज अ रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। इसको हम क्या बोलेंगे? आरडीएस बोलेंगे, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। जब भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होगी तो जो स्लो स्टेप होगा वही स्टेप दोस्तों एक्चुअल में रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होगा। लेट्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड विद वन जनरल एग्जांपल। दोस्तों सपोज आपके लिए कोई अमेरिका से कोई लेटर पोस्ट कर रहा है, जो सेम डे वहां से निकल गया, और सेकंड या थर्ड डे दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है, वहां पे पोस्ट ऑफिस पे पहुंच जाता है। सो इन 2 days योर लेटर कम टू इंडिया, और वो दिल्ली पोस्ट ऑफिस पे पड़ा है। अभी वहां से निकलने के लिए 15-20 दिन या 1 महीना निकल गया। फिर उसके बाद आपकी सिटी जो भी है, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत एक्सेट्रा, वहां पे पहुंचा पोस्ट ऑफिस में। फिर वहां पे दूसरे 15 दिन निकल गए। फिर वहां से आपके घर आते आते और 15 दिन निकल गए। इट मीन्स 2 महीने निकल गए। कहाँ पे? दिल्ली पोस्ट ऑफिस टू योर होम। बट 2 ही दिन में दोस्तों दिल्ली पोस्ट ऑफिस पहुंच गया था। अगर यहाँ पे बात करी है कितने स्टेप में रिएक्शन होगी, तो मैं बताऊंगा ये 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप, लेटर फ्रॉम अमेरिका टू दिल्ली, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, दिल्ली टू योर होम। अभी आपको कोई पूछे कितने टाइम में आपको लेटर मिला, देन यू विल आंसर 2 महीने में मिला। एक्चुअली वो 2 महीने में नहीं मिला, 2 महीने और 2 दिन में मिला, बट फिर भी आप 2 महीने बोलोगे, बिकॉज दैट 2 मंथ वो जो स्टेप था दैट इज स्लो स्टेप, और उसी को हम रेट डिटर्मिनेशन स्टेप बताते हैं दोस्तों। वही स्टेप कौन से नाम से जाना जाएगा? रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। क्लियर है? देन आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से दोस्तों इस तरह की रिएक्शन जहाँ पे आपको मोलिकुलरिटी ज्यादा दिखती है, और रिएक्शन किस तरह की होगी? और रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगी, वहां पे एक से ज्यादा स्टेप होगा, और एक से ज्यादा स्टेप में जो स्लो रहेगा दैट इज रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। अभी यहाँ पे दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इस तरह से लिखा है, दैट दिस रिएक्शन इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इट मींस यहाँ पे जो एक से ज्यादा स्टेप होने वाले हैं, एक से ज्यादा स्टेप में से जो स्लो स्टेप होगा उसका ऑर्डर होगा वो सेकंड होगा। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल है दोस्तों। वी आर गोइंग टू डिकम्पोज हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को डिकम्पोज करके वी आर ट्राइंग टू मेक H2 and O2। हमको H2 और O2 गैस चाहिए। in presence of I minus indicator in the alkaline media, or we can say basic media, this reaction is possible। अब अगर दोस्तों यहाँ पे आप ठीक से देखो तो आपको मोलिकुलरिटी दिखेगी 2। एक्चुअल में the molecularity of this reaction is 2 and the order of the reaction is also 2। this is the second order reaction। बट यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, दैट्स व्हाई ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसा नहीं है। ये रिएक्शन के एक से ज्यादा स्टेप में से जो स्लो स्टेप है वहां पे दोस्तों मोलिकुलरिटी 2 है, और वहां पे मोलिकुलरिटी और रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का रिलेशन वर्क कर रहा है। सो द रेट ऑफ द इक्वेशन, अगर हमको ये रिएक्शन पॉसिबल बनानी है, twice H2O2 will give twice H2O plus O2 in presence of I minus in the alkaline medium। The rate of the equation is writing down something like this: rate is equal to minus dH2O2 upon dt। H2O2 is nothing but the reactant, is equal to K। K is the constant। आगे हमने पढ़ा था H2O2 and I minus, this both are reactant, H2O2 and I minus। This reaction can be possible in 2 step। ये रिएक्शन दोस्तों एक्चुअल में 2 स्टेप में पॉसिबल है।
किस तरह से यहाँ पे 2 स्टेप में एक्चुअल रिएक्शन होगी और किस तरह से एक्चुअल मोलिकुलरिटी होगी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा, लेट अस से। thus respect of H2O2 the order of the reaction is 1. In the respect of the hydrogen peroxide, order of the reaction is 1. One more thing, in respect to I minus, again rate of the reaction is 1. दोस्तों अगर यहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंग बात करें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अकॉर्डिंग बात करें, then we can say order of the reaction is 1. If we talking in respect of the I minus, again order of the reaction is 1. So what is the overall order of the reaction? Overall order of the reaction is 1 plus 1 is equal to 2. That's why this reaction is second order reaction. Okay, that is clear. This reaction is second order reaction. Okay, there is no query. But अगर दोस्तों step की बात करें to complete this reaction we have to perform in 2 steps. The decomposition of the H2O2 hydrogen peroxide takes place in 2 steps. वो 2 step में possible होगा. कौन कौन से 2 स्टेप है, लेट अस सी। H2O2 प्लस I माइनस, एकदम ध्यान से दोस्तों, H2O2 प्लस I माइनस गिव्स H2O प्लस IO माइनस। ये फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इज स्लो। ये पहला स्टेप है और स्लो है। देन सेकंड स्टेप क्या होगा दोस्तों, सेकंड स्टेप H2O2 वन मोर H2O2 प्लस IO माइनस, जो यहाँ पे मीडिएटर प्रोडक्ट बनती है, दैट इज IO माइनस। अगेन गिव्स H2O2 में से H2 अलग पड़ेगा, वन ऑक्सीजन फ्रॉम IO माइनस गिव्स O2 एंड I माइनस इज देयर। दिस इज फास्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज फास्टर। अगर यहाँ पे मेरे को पूरी रिएक्शन लिखनी है, देन आई कैन राइट IO माइनस 2, यहाँ पे कैंसिल कर दो, I को कैंसिल कर दो, H2O2 प्लस H2O2 ट्वाइस H2O2 गिव्स क्या मिलेगा, H2O प्लस H2O ट्वाइस H2O प्लस O2। अगर आप इसके अकॉर्डिंग इसकी मोलिकुलरिटी 2 कह रहे हो तो थोड़ा यहाँ पे गलत होगा, बिकॉज इन दिस फ्लो स्टेप 1 mole H2O2 1 mole I minus, that's why molecularity is 2. Then second order reaction is also from the on the basis of slow step. जो स्लो स्टेप है फर्स्ट स्टेप, वहां पे दोस्तों अगर दोनों के अकॉर्डिंग बात करें, H2O2 के अकॉर्डिंग और I माइनस के अकॉर्डिंग बात करें, देन वी कैन से the order of the reaction, I repeat, order of the reaction in respect to H2O2 is 1, in respect to I minus is also 1, और इन दोनों का सम करें, then we can say the order of the reaction is also 2 and the molecularity is also 2. So this is all about molecularity and the order of the reaction. But फिर भी दोस्तों अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंस बिटवीन order of the reaction or reaction order of the reaction and the molecularity, तो आपको कौन कौन से मेन डिफरेंस यहाँ पे दिख रहे हैं उसको जस्ट लिस्ट आउट करो। then we can say order of the reaction is practical manner as well as molecularity is the theoretical. okay, ये पहली चीज हुई। then order of the reaction may be 0, may be 1 2 3 or fraction of the unit. molecularity is always positive unit. 0 मोलिकुलरिटी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। एक रिएक्शन हमने की थी, वहां पे स्टार्टिंग में कितने रिएक्टेंट थे, 0 रिएक्टेंट, पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज कंपलसरी पॉजिटिव नंबर रिएक्शंस। ओके, एक चीज दोस्तों आज तक लिखते आए, H2 प्लस 1/4 गिव्स H2O। एज पर एज रूल अगर आप ये रिएक्शन की मोलिकुलरिटी की बात करोगे, देन यू कैन से 1 + 1/2 इज इक्वल टू 1 and 1/2। बट दोस्तों ये एक्चुअली गलत होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्वाइस H2 + 4 gives ट्वाइस H2O and the molecularity of this reaction is 3. that is right. यहाँ पे हाफ तो हम हमारी इजीनेस के लिए लिखते हैं, एक्चुअल में वहाँ पे लिख नहीं सकते। सो molecularity always positive where order of the reaction 0 1 2 possible है,
मोलिकुलरिटी 0 दोस्तों पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? देन अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें स्टार्टिंग में, पर्टिकुलर फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पॉसिबल है मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कॉमन हो, बट उससे अगर आगे बात करें तो वहां पे दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। एक टॉपिक हम अंदर पढ़ने वाले हैं जहाँ पे हम बात करेंगे एग्जैक्टली कभी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड द मोलिकुलरिटी कॉमन हो। फॉर द बोर्ड एग्जाम ये भी पॉसिबल है दोस्तों, इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस पूछा जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड द मोलिकुलरिटी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सो रिवीजन लेक्चर था हमारा और यहाँ तक आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, उसके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, फ्रॉम द एडिशनल वर्कशीट दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।